ٹی وی نیوز میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آغاز کریں گے حدیث مبارکہ سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تم اللہ پر اس طرح بھروسہ کرو جس طرح اس پر بھروسہ کرنے کا حق ہے تو تمہیں اس طرح رزق دیا جائے گا جس طرح کے پرندوں کو رزق دیا جاتا ہے۔ وہ صبح خالی پیٹ نکلتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کر واپس لوٹتے ہیں۔ حدیث مبارکہ ترمذی شریف۔ تفصیل سے خواب نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر۔ پردہ ہمارے نسوانی وقار اور تحفظ کی علامت، اس کے خلاف کوئی بھی سازش ناقابل برداشت۔ حجاب کے خلاف سازش، مسلم دوشیزاؤں کو تعلیم سے محروم کرنے کی کوشش، طالبات کا بیان۔ بھیم گل بلدیہ کے چیئرپرسن کے عہدے کے لیے 19 فروری کو انتخاب، 14 فروری پرچہ نامزدگی کے ادخال کی آخری تاریخ۔ ضلع کلکٹر نے بھیم گل دورے کے موقع پر بلدی عہدیداروں کو ضروری ہدایت دی۔ بودھن میں مشکوک انداز میں گھومنے والے 2 نوجوانوں کی گرفتاری، معلوم ہوا ہے کہ یہ 2 نوجوان سوڈان سے تعلق رکھتے تھے۔ بودھن پولیس نے ان کو وجے واڑہ کے خازن رجسٹرار کے حوالے کر دیا۔ پولیس نے 2 الگ معاملات کی یکسوئی کر لی، ایک میں سیل فون سارق کو گرفتار کر کے 49 سیل فون ضبط کیے، جبکہ دوسرے معاملے میں موٹر بائیکس کے سارق کی گرفتاری عمل میں آئی۔ سی پی نے تفصیلات سے آگاہ کیا۔ اب خبریں تفصیل سے۔ حجاب ہمارا دستوری حق اور نسوانی وقار کی علامت، نسوانی وقار پر ضرب سنگین نتائج کا سبب بنے گی۔ فرقہ پرست عناصر اپنی کوششوں سے باز آ جائے۔ نہرو پارک پر احتجاجی دھرنے سے مسلم دوشیزاؤں کا بے باک اظہار خیال۔ حجاب ہمارا وقار ہے، حجاب ہماری عظمت ہے، حجاب ہماری حرمت ہے، حجاب پر ہم اپنی زندگیاں قربان کر دیں گے۔ حجاب ہمارا دستوری حق ہے، اس سے ہم کو کوئی محروم نہیں کر سکتا۔ مسلم دوشیزاؤں کا نہرو پارک پر زبردست احتجاجی دھرنا۔ حافظ محمد لائق خان صدر ضلع جمعیت العلماء کی زیر قیادت اس احتجاجی دھرنے میں کئی طالبات نے حصہ لیا اور پردے کے خلاف ہونے والی سازشوں کے خلاف اپنی شدید ناراضگی اور برہمی کا اظہار کیا۔ طالبات نے کرناٹک کی حکومت کی شدید مذمت کی اور کہا کہ آرٹیکل کی دفعہ 25 کے تحت ہمیں حجاب کا استعمال کرنے کا مکمل دستوری حق ہے اور ہم سے کوئی بھی ہمارا دستوری حق چھین نہیں سکتا۔ طالبات نے کہا کہ مرکزی حکومت بیٹی بچاؤ اور بیٹی پڑھاؤ کا نعرہ دیتی ہے، لیکن حجاب کا استعمال کرنے والی بیٹیوں کو تعلیم سے محروم کرنے کی سازش کی جاتی ہے۔ ان طالبات نے کہا کہ حجاب ہمارے نسوانی وقار کی علامت ہے اور اس وقار کو مجروح کرنے والی سازشوں کا منہ توڑ جواب دینے کا حوصلہ رکھتی ہے۔ ہم چپ نہیں رہیں گی۔ اگر فرقہ پرست عناصر یہ سمجھتے ہیں کہ مسلم دوشیزائیں ان کے اس گھٹیا مطالبے کو تسلیم کرے گی تو یہ ان کی بھول ہوگی۔ پردہ یا حجاب ہماری شان ہے اور ہمارے مذہب نے ہم کو جو وقار اور تحفظ اس حجاب کے ذریعے فراہم کیا ہے، ہم اس کا تحفظ کرنا بخوبی جانتے ہیں۔ طالبات نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا کہ وہ اس طرح کی کوششوں کو ناکام بنانے اور ملک میں منافرت کو بڑھانے کی کوشش کرنے والوں کے خلاف سخت کارروائی کرے، بصورت دیگر سنگین حالات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ صدر ضلع جمعیت العلماء حافظ محمد لائق خان نے سوال کیا کہ کیا ملک میں انتخابات کے لیے بی جے پی رائے کو ہموار کرنا چاہتی ہے؟ ایسا ہے تو پھر یہ ان فرقہ پرستوں کی خام خیالی ہے۔ حجاب کے تحفظ کے لیے مسلمان ہی نہیں بلکہ ہر ملک کا ہر سیکولر شہری ضرورت پر سڑکوں پر اتر آئے گا اور اس طرح کی کوششوں کا منہ توڑ جواب دے گا۔ انہوں نے کہا کہ کیرلا اور ممبئی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلوں میں کھلے طور پر واضح کر دیا تھا کہ حجاب مسلم خواتین و دوشیزاؤں کا بنیادی و دستوری حق میں اس میں قطعی مداخلت نہیں کی جا سکتی۔ فرقہ پرست طاقتوں اور تعلیمی اداروں کو اس معاملے میں محتاط رویہ اختیار کرنا ہوگا ورنہ حالات سنگین ہونے کا خدشہ لاحق ہوگا۔ disturb the public order? How can a piece of cloth be a hindering uniformity? How can that be? How can the girls be prevented from education? By preventing the girls from education, remember that you are denying
the hijabi girls their right to education by banning the hijab. It's somewhere hurting the education. And hijab is our choice. It's our liberty. It's our liberty. We have been given the right. And hijab should not be banned. We are against the hijab. It's the fundamental point of our Islam. It's our identity. Hijab is a modesty. Hijab teaches us discipline. So hijab should not be banned. We are against the hijab. Say girls, आवाज़ दो! हक दिया है कि हम हिजाब पहन सकती है, हम हमारे रिलीजन को, हम हमारे मजहब को, अपने धर्म को पूरी तरह से प्रैक्टिस कर सकती है, उसको प्रोपोगेट कर सकती है और ये हमारी पहचान है. तो हम क्यों हमारी पहचान को रोके, हमें क्यों एजुकेशन से रोका जा रहा है, हमें क्यों यूनिवर्सिटीज में हिजाब पहनने से रोका जा रहा है? ये हमारा हक है, ये हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारी शान है. जब सरकार ने एजुकेशन से लेके हिजाब के ताल्लुक से कोई गाइडलाइंस नहीं बनाए हैं, तो क्यों यूनिवर्सिटीज वाले रोकते हैं लड़कियों को हिजाब पहनने से? हमारे संविधान हमें प्रोटेक्ट करता है कि हम हिजाब पहन सकते हैं, हमारा रिलीजन प्रैक्टिस कर सकते हैं. क्या एक कपड़े का टुकड़ा यूनिफॉर्मिटी को हर्ट कर रहा है? क्या ये कपड़े का टुकड़ा ही है जो हमें हमारे फंडामेंटल राइट से अलग कर देगा? नहीं, हम हिजाब के खिलाफ, हिजाब बैन के खिलाफ है. हम हिजाब बैन के खिलाफ है. बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ. जब ये कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फिर बेटियों को हिजाब पहनने से आप कहीं ना कहीं बेटियों को एजुकेशन से रोक रहे हैं. आज नेहरू पार्क पर निज़ामाबाद में जमीयत उलमा की जानिब से एक एहतजाज मुनज़्ज़म किया गया था, जिसमें यहाँ पर हमारी कॉलेज की स्टूडेंट्स बहनें अपना पुरज़ोर मुज़ाहरा किए हैं और बेहतरीन अंदाज में हिजाब क्या है उन्होंने बताया है. आज हम कर्नाटक गवर्नमेंट से ये कहना चाहते हैं कि ये मुल्क जमहूरी मुल्क है और हिजाब हमारी औरतों का कानूनी और आईनी हक है. उनसे उनका यह हक कोई छीन नहीं सकता. इसके लिए बम्बई का जजमेंट हाई कोर्ट का भी है और हमारे सामने ये आप देख सकते हैं केरला हाई कोर्ट का जजमेंट है, जिसके अंदर ये बताया गया कि हिजाब के ऊपर कोई उनके ऊपर पाबंदी नहीं लगा सकते और हिजाब उनका कानूनी हक है और मुल्क का आईनी हक है. भीमगढ़ बल्दिया के चेयरपर्सन के मखलूआ ओहदे के लिए 19 फरवरी को इंतखाब. उम्मीदवार 14 फरवरी तक अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल कर सकते हैं. साबिका चेयरपर्सन ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद से ये ओहदा मखलूआ था. जिला कलेक्टर ने खुसूसी हिदायतें दी. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने आज बालकोटा हल्का असम्बली की हुदूद में वाक़े भीमगढ़ मंडल में मुख्तलिफ तरक्याती कामों का जायजा लिया. पले प्रगति और दीगर तरक्याती स्कीमात की मौसर अमलावरी को यकीनी बनाने की जिला कलेक्टर ने हिदायत दी. साथ ही जिला कलेक्टर ने बल्दी हुकाम से भी गुफ्तगू की और अहम हिदायतें दी. वाज़ेह है कि भीमगढ़ बल्दिया के चेयरमैन के ओहदे के लिए 19 फरवरी को इंतखाब मुतवक्किल है. 2 साल कबल रियासती हुकूमत ने भीमगढ़ ग्राम पंचायत को तरक्की देते हुए बल्दिया कौंसिल का मौक़िफ़ दिया था, जिसके बाद यह इंतखाबात अमल में लाए गए थे और भीमगढ़ की पहली चेयरपर्सन की हैसियत से एम राशरी ने जायजा हासिल किया था, लेकिन बाज़ वजूहात की बिना पर राशरी ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया था. जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी, जो जिला इलेक्टोरल ऑफिसर भी है, उन्होंने इस इस्तीफा को कबूल कर दिया और उसको रियासती इलेक्शन कमीशन को भेज दिया, जिसके बाद रियासती इलेक्शन कमीशन ने असरनो चेयरमैन के इंतखाबात करवाने का अलामिया जारी कर दिया. लिहाजा भीमगढ़ बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे के लिए 19 फरवरी को सुबह 10 से दोपहर 12 बजे तक रायदही अंजाम दी जाएगी और उसी दिन नतीजे का ऐलान कर दिया जाएगा. भीमगढ़ बल्दिया के चेयरपर्सन का ओहदा खवातीन के लिए मख्तस व महफूज है, लिहाजा खवातीन काउंसलर्स ही इंतखाबात में हिस्सा ले सकती है. उम्मीदवारों को 14 फरवरी तक अपने पर्चाजात नामजदगी दाखिल करने होंगे. इस सिलसिले में तैयारियों को खतेर देने की जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने ओहदेदारों को हिदायत दी. డిపార్ట్మెంట్, ఇరిగేషన్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నిటిని కూడా, అంటే ఇంజనీరింగ్ డిపార్ట్మెంట్ అన్నింటిని కూడా ఈ యొక్క వర్క్లో ఫోకస్ చేయిస్తూ వారికి సివిల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ అంటే అటు గ్రామ పంచాయతీలు, ఇటు మున్సిపాలిటీస్, అటు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, పంచాయతీరాజ్ డిపార్ట్మెంట్ అందరూ కూడా కలిసికట్టుగా ఒక డ్రైవ్ రూపంలో ఈ వర్క్స్ అన్నీ పూర్తి చేసే విధంగా ఆల్రెడీ ఒక 1 వీక్ నుంచి ఈ యొక్క పని చేస్తూ ఉన్నాం. అందులో లోకల్గా ఉన్న ప్రజాప్రతినిధులు కావచ్చు, అక్కడ ఉన్న అధికారులు కావచ్చు, అందరూ కూడా వర్క్స్ గ్రౌండ్ చేసే విధంగా ఫోకస్ చేస్తూ ఉన్నారు. నెక్స్ట్ 1 వీక్ 10 డేస్లో అన్ని వర్క్స్ గ్రౌండ్ చేసే విధంగా చర్యలు తీసుకోబోతా ఉన్నాం. చాలా వరకు ఎన్ఆర్ఈఎస్ వర్క్స్ అన్నీ కూడా, అదేవిధంగా సిడిబికి సంబంధించిన వర్క్స్ అన్నీ కూడా 31 మార్చ్లోనే పూర్తి చేయాలనే టార్గెట్తో ముందుకు వెళ్తూ ఉన్నాం. సో అందులో భాగంగా ఈరోజు
భీమ్గల్ మున్సిపాలిటీలో ఇక్కడ సివిల్ వర్క్స్ అంటే ఇక్కడ కూడా పట్టణ ప్రగతిలో కావచ్చు. आटोनगर में एसएस वाटर प्लांट का तिलावत कुरान हकीम और दुआ से इफ्तिताह अमल में आया। मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि इनके प्लांट के जरिए साफ व शफाफ व सेहतबख्श पानी की सरबराही अमल में लाई जाएगी। आटोनगर में एसएस वाटर प्लांट का इफ्तिताह अमल में लाया गया। इस वाटर प्लांट के मालिक मोहम्मद नसीर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस प्रोग्राम में अमीर मुकामी रियाज तन्हा, नॉलेज पार्क डायरेक्टर सैयद मुजीब अली, वाईएस के मालिक अब्दुल समद राफे के अलावा दीगर कई अहम शख्सियतों ने इस इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इस मौके पर दुआ का एहतमाम किया गया और दुआ के साथ इस वाटर प्लांट के कारोबार का आगाज किया गया। दौरे हाजिर में हर घर में ऐसे प्लांटों के जरिए पानी की सरबराही अमल में लाई जाती है और पानी की बोतलों की मांग में हर दिन इजाफा होता जा रहा है। पीने के पानी को मजीद साफ और शफाफ बनाते हुए बोतलों के जरिए मकानों को सरबराह करना दौरे हाजिर का अहम कारोबार बना हुआ है, लेकिन इसमें बाएतमाद अफराद की जरूरत है। मोहम्मद नसीर आटोनगर के एक शरीफुल नस्ल नौजवान है और इन पर अहलिया ने मोहल्ला को अटूट एतमाद है। उम्मीद है कि इनके प्लांट से साफ व शफाफ व खुश जायका पानी की सरबराही अमल में आएगी। शुरा ने इनसे नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी पर कातिलाना हमले की कड़ी मजम्मत। मदरसा सबीलुल इस्लाम में महफिल आयत करीमा व दुआ निशिस्त का एहतमाम। असातिज़ा ने बताया कि असदुद्दीन अवैसी के हक में बेशुमार दुआएं हैं। मदरसों के असातिज़ा व तलबा भी इनके हक में दुआ गो है। वो महफूज व मामून रहेंगे इंशाअल्लाह। डिवीज़न 12 में ड्राइवर कॉलोनी के अगबी हिस्से में वाक़ मदरसा सबीलुल इस्लाम में आज महफिल आयत करीमा का अहतमाम किया गया। इस मदरसे के असातिज़ा व तलबा ने आयत करीमा के इस मुक़द्दस महफिल में हिस्सा लिया और आयत करीमा की तिलावत के बाद खुसूसी दिवाया नशिस्त मुनक़्क़िद की गई, जिसमें सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी की हिफाजत व सलामती के लिए बारगाह खुदाबंदी में इल्तिजा की गई। इस नूरानी महफिल में मुक़ामी कॉर्पोरेटर मीर समीर अली ने भी शिरकत की और आयत करीमा व दुआया मजलिस में शिरकत की सादत हासिल की। इस मौके पर मदरसे के असातिज़ा ने कहा कि सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी बिलाशुबा मुल्क के मुसलमानों के कायद व रहनुमा हैं। उन्होंने हमेशा ही मुस्लिम मसाइल की बेबाक नुमाइंदगी की, जिसकी वजह से फ़िरका परस्त अनासिर बौखलाहट का शिकार है, क्योंकि हर आए दिन सदर मजलिस की मकबूलियत में बेतहाशा इजाफा हो रहा है। लिहाजा इन पर हमला करते हुए इनके अज़ाइम को पस्त करने की नापाक कोशिश की जा रही है, लेकिन असदुद्दीन अवैसी महफूज व सलामत रहेंगे, क्योंकि इनके हक में बेशुमार लोग दुआएं करते हैं, जिनमें मदरसों के तलबा व असातिज़ा भी शामिल है। या अल्लाह, मजलिस के इलाहुल आलमीन जितने भी कारकुन हैं, या अल्लाहुल आलमीन असदुद्दीन अवैसी साहब को सेहत अता फरमा, अल्लाह अकबरुद्दीन साहब को भी सेहत अता फरमा, अल्लाह इस आयत करीमा की बरकत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के जितने भी कारकुन हैं, या अल्लाह इस मेहनत में लगे हुए हैं, अल्लाह दीन की मेहनत में लगे हुए हैं। मदरसे सबीलुल सलाम सागर हिल्स कॉलोनी में जो निज़ामाबाद में अल्हम्दुलिल्लाह इस मदरसे में आयत करीमा कुरान शरीफ की तिलावत का अहतमाम किया गया है। मकसद इसका ये है कि जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन और बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब पर जो हमला किया गया है उसकी तो हम मजम्मत करते हैं। सारी दुनिया में जो है उनके ऊपर जो मुसलमानों के लिए उन्होंने खड़े हो रहे हैं, मुसलमानों और सारे दुनिया के जो कारकुनान हैं, दलित है और जितने भी अफराद हैं, उन सब के लिए वो मेहनत करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। उनको रोकने के लिए, उनको डराने के लिए कोशिश की जा रही है, लेकिन वो डरने वाले नहीं है। पुलिस ने 49 सेलफोन बरामद किए और सारिक को गिरफ्तार कर लिया। इसी तरह मोटरसाइकिलों के आदि सारिक को गिरफ्तार करते हुए 6 मोटरसाइकिलों को बरामद करते हुए जब्त कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात से आगाह किया। निजामाबाद पुलिस ने मुख्तलिफ वारदातों में मुलविस सारिकों को गिरफ्तार करते हुए सरका की गई मोटरसाइकिल, सेलफोन्स को बरामद करते हुए जब्त किया। निजामाबाद पुलिस कमिश्नर KR नागराजू ने आज पुलिस कमिश्नरेट कॉन्फ्रेंस हॉल में मुनक्किदा सहाफती कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए बताई। उन्होंने कहा कि सारिक श्रीनू 21 साला साकिन कालूर गांव बांसवाड़ा मंडल जिला कामारेड्डी ने खेतों में जाने वाले किसानों की पार्क की गई 6 मोटरसाइकिलों का सरका किया। इससे कबल भी मुलजिम श्रीनू ने बांसवाड़ा पुलिस स्टेशन की हुदूद में 7 मोटरसाइकिलों का सरका करने के इल्जाम में 2 साल जेल की सजा काट चुका है। माह सितंबर 2021 में जेल से छूट जाने के बाद 6 मोटरसाइकिलों को फरोख्त करने के दौरान
मुकपाल पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। इस सिलसिले में निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, साउथ रूरल सीआई नरेश, मुकपाल एसआई महेश व स्टाफ ने मुलजिम की गिरफ्तारी और मसरूका मोटरसाइकिलों को बरामद व जब्त करने में अहम रोल अदा किया। पुलिस कमिश्नर नागराजू ने मजीद बताया कि एक और सेलफोन्स के सरखे की वारदातों में मुलविस निजामाबाद शहर से ताल्लुक रखने वाले 3 मुलजिमीन विनय कुमार, निखिल कुमार, साहिब प्रसाद को मुश्तबा हालत में मार्केट इलाके में घूमते हुए नजर आने पर 3 टाउन पुलिस निजामाबाद ने गिरफ्तार किया और तफ्तीश के बाद मसरूका 49 सेलफोन्स और टीवीएस जुपिटर गाड़ी को बरामद करते हुए जब्त किया। इस सिलसिले में निजामाबाद एसीपी वेंकटेश्वरलू, निजामाबाद टाउन सीआई कृष्णा, 3 टाउन एसआई साइनाथ वो पुलिस स्टाफ की कारकर्दगी पर सताइश करते हुए अवार्ड अता किया गया। मुलजिमीन को रिमांड के लिए अदालत भेज दिया गया। టూ వీలర్స్ దొంగతనం చేస్తున్న ఒక పక్క పర్ఫెక్ట్ నేరస్తులు, మంచి కాస్ట్లీ బైక్స్ అన్ని దొంగతనం చేస్తుంటారు. ఇందులో ఒకటి మనకు 78,000 బైక్ కూడా దొంగతనం చేస్తున్నారు. సో సుమారు టోటల్ 6 బైక్స్ అంచనా ప్రకారంగా 5,92,000. ఇందులో ఎస్ఐ చాలా చాకచక్యంగా సీసీ ఫుటేజ్ ద్వారా మనకు ఐడెంటిఫై చేసి वालिदैन अपने बच्चों की ज़हनी तालीम पर तवज्जो मरकूज करें। मस्जिद इस्लामिया में कायम दीनी मरकज में मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर का खिताब। इस मरकज से 37 तलबा व तालिबात ने इस्तेफादा किया। असातिज़ा ने इनकी शानदार तरबियत की। वालिदैन अपने बच्चों की दीनी तालीम व तरबियत पर खुसूसी तवज्जो दे। इन ख्यालात का इजहार मौलाना अब्दुल क़य्यूम शाकिर क़ासमी, जनरल सेक्रेटरी जमीयतुल उलमा जिला निजामाबाद ने कल मस्जिद इस्लामिया में मुनक्किदा सेमाही इम्तिहान के मौके पर किया, जहां इदारा तंजीमुल मकातिब के तहत 37 तलबा व तालिबात यौम 1.5 घंटा यूनिफॉर्म और पूरे नज़्म व ज़ब्त के साथ तलबा दीनी तालीम हासिल करते हैं। नमाज मगरिब व इशा पर तालिब इल्म को मस्जिद इस्लामिया हाजिर होकर पढ़ाने का एहतमाम किया जाता है। आज शहर निजामाबाद के मरकजी मदरसा इदारा मज़हरुल उलूम के काबिल असातिज़ा इकराम मुफ्ती अब्दुल माजिद क़ासमी, मौलाना अबरार क़ासमी, हाफिज़ अब्दुल रहमान मज़हरी ने तलबा और तालिबात का इम्तिहान लिया और उम्दा कारकर्दगी पर असातिज़ा इकराम को मुबारकबाद दी और खामियों की जानिब निशानदही करते हुए तवज्जो दिलाई। अल्हम्दुलिल्लाह शहर के मुख्तलिफ मोहल्लाजात में इदारा तंजीमुल मकातिब के ज़ेर एहतमाम तालीमी मराकिज़ कायम करके नई नस्ल के ईमान के तहफ़्फ़ुज़ और दीन की इब्तदाई बुनियादी अहकामात से वाकिफ़ कराने की कोशिश की जा रही है। मुसलमानान निज़ामाबाद और मसाजिद कमेटी व ज़िम्मेदारान से ख्वाहिश है कि वो मौजूदा आलमी हालात के तनाजुर में इस हवाले से अपनी अपनी ज़िम्मेदारियों को समझे और बच्चों को दीन व ईमान की अज़मत बताने और अहकामात इस्लामिया से रोशनास कराने की फ़िक्र करे। इस मौके पर हाफिज़ मोहसिन, हाफिज़ मोइस, हाफिज़ आदिल, हाफिज़ राशिद, इमरान शरीफ व दीगर अहबाब मौजूद थे। नाज़रीन, यहाँ लेंगे एक छोटा सा वक्फा। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वस्त्री तिब्बी आला से लैस आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नज़लिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद दोबारा आपका खैर मकदम है।
حال ہی میں نظام آباد کے معروف عالم دین مولانا عبدالقیوم شاکر مثالی استاد ایوارڈ سے سرفراز کیے گئے۔ نرمل جمعیت العلماء کے رکن نے مفتی الیاس احمد قاسمی کی قیادت میں نظام آباد پہنچ کر ان کو تہنیت پیش کی۔ جمعیت العلماء نرمل کی جانب سے مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی کو مثالی استاد ایوارڈ ملنے پر تہنیت پیش کی گئی۔ محمد الیاس احمد حامد قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء نرمل نے اپنے اراکین و رفقا کے ساتھ دفتر جمعیت العلماء نظام آباد پہنچ کر شال پوشی کی اور اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ناندیڑ کی متحرک تنظیم خادمین امت کی جانب سے پہلی بار دینی مدارس کے اساتذہ اکرام کو مثالی استاد ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا گیا، جس میں ضلع نظام آباد سے شہر کے نوجوان عالم دین، مختلف تنظیموں کے فعال فرد، مرکزی مدرسہ ادارہ مظہر علوم کے جلیل القدر استاد مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی جنرل سیکریٹری جمعیت العلماء، امام و خطیب مسجد اسلامیہ کو پہلا مثالی استاد ایوارڈ دیا گیا، جو مولم مدینہ حضرت مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے موسوم ہے۔ ہم دل کی گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا کرتے ہیں کہ اللہ پاک مولانا موصوف کو دین و دنیا پر اعتبار سے ترقیات عطا فرمائے، مزید اور ایوارڈوں سے نوازے، خدمت دین و انسانیت کی فلاح و بہبود کے لیے اللہ پاک خوب کام لے اور اپنی رضا نصیب فرمائے اور حاسدین کے حسد سے بھی محفوظ فرمائے۔ اس موقع پر مولانا سید عابد حسین قاسمی، حافظ اشفاق احمد جابر، حافظ حسان، حافظ سلمان بھی موجود تھے۔ مولانا عبدالقیوم شاکر قاسمی نے اپنے اس ایوارڈ کو اپنے والدین و اساتذہ اکرام بطور خاص مولانا سید ولی اللہ قاسمی علیہ رحمہ کے نام کرتے ہوئے کہا کہ انہی کی توجہات اور محنتوں کا یہ ثمر ہے، میری کوئی ذاتی کمال کا اس میں دخل نہیں ہے۔ بودھن امبیڈکر چوراہے پر 2 غیر ملکی مشکوک نوجوانوں کو پولیس نے حراست میں لے لیا۔ ابتدائی پوچھ تاچھ پر معلوم ہوا کہ وہ سوڈان ملک کے شہری ہے اور وجے واڑہ میں زیر تعلیم تھے۔ ایک اطلاع کے مطابق ان میں سے ایک نوجوان کا ویزا ختم ہو چکا تھا۔ بودھن پولیس نے امبیڈکر چوراہا بودھن پر مشکوک انداز میں گھومنے والے 2 غیر ملکی نوجوانوں کو شک کی بنیاد پر حراست میں لے لیا اور ان سے پوچھ تاچھ پر معلوم ہوا کہ یہ نوجوان سوڈان ملک سے تعلق رکھنے والے ہیں اور آندھرا پردیش کے معروف شہر وجے واڑہ کے نووا انجینئرنگ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق ان 2 نوجوانوں میں ایک نوجوان کے انجینئر کے کچھ پیپر باقی رہ گئے ہیں اور ان کو کلیئر کرنے کے لیے وہ مساعی کر رہا ہے، جبکہ دوسرے نوجوان کے تعلق سے معلوم ہوا کہ اس کا ویزا 2 سال قبل ختم ہو چکا تھا، لیکن وہ اپنے ویزا کا رینیول کرائے بغیر غیر قانونی طور پر ملک میں مقیم تھا۔ اطلاع کے مطابق یہ نوجوان گاڑیوں کی خرید و فروخت کا بھی کاروبار کرتے تھے۔ پرانی گاڑیوں کو خریدنا اور تھوڑی زیادہ قیمت پر فروخت کرنا ان کا کاروبار تھا۔ بودھن کے ماروتی نامی شخص نے آن لائن پوسٹ کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اس کے پاس ایک پرانا ٹریکٹر قابل فروخت ہے۔ اس پوسٹ کو ان نوجوانوں نے بھی دیکھا اور اس کی خریدی کے لیے بودھن آئے تھے، لیکن ان کے رویے سے پولیس کو شک ہوا اور بودھن پولیس نے ان کو حراست میں لے کر پوچھ تاچھ کی تو یہ تفصیلات منظر عام پر آئی۔ ان نوجوانوں کی حمید اور عمر کی حیثیت سے شناخت کی گئی، جو ملک سوڈان سے تعلق رکھتے ہیں۔ باوثوق ذرائع سے ملی اطلاع کے مطابق بودھن پولیس نے ان نوجوانوں کو وجے واڑہ میں واقع فارن رجسٹریشن آفس کے حوالے کر دیا، جہاں ان سے مزید تحقیقات کی جائے گی اور مناسب کارروائی کیے جانے کا بھی امکان ہے۔ آرمور کے علماء و حفاظ نے TRS آرمور کے قائدین کے ہمراہ حیدرآباد میں MLA جیون ریڈی سے ملاقات کی اور صدر ضلع TRS نامزد کیے جانے پر ان کی شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے دلی مبارکباد پیش کی اور TRS حکومت کی کارکردگی کی زبردست ستائش کی۔ آرمور جمعیت العلماء و حفاظ کے ایک وفد نے حیدرآباد پہنچ کر آرمور MLA و PUC چیئرمین A جیون ریڈی سے ان کی قیام گاہ پر ملاقات کی اور ان کو صدر ضلع TRS نامزد کیے جانے پر شال پوشی و گل پوشی کرتے ہوئے مبارکباد دی۔ اس موقع پر آرمور TRS کے قائدین عثمان علی حضرمی اور محمد سمیر احمد بھی موجود تھے۔ اس موقع پر علماء و حفاظ نے ریاستی حکومت کی زبردست ستائش کی اور بتایا کہ ملک کی تاریخ میں پہلی بار ریاست تلنگانہ میں ائمہ و مؤذنین کو ماہانہ خصوصی اعزازیہ دیا جا رہا ہے، جو کہ واقعی قابل ستائش اقدام ہے۔ اس کے علاوہ عیدین کے موقع پر بھی غریب مسلم خاندانوں میں ملبوسات اور عید کٹس کی تقسیم عمل میں لائی جاتی ہے۔
टीआरएस कायदीन और उलमा हुफाज ने करीब 3 घंटे तक एमएलए आरमूर से गुफ्तगू की। इस दरमियान आरमूर के कई मसाइल पर तबादले ख्याल किया गया और बाज़ कामों की जल्द अज जल्द यकसुई के लिए एमएलए जीवन रेड्डी से नुमाइंदगी की गई। एमएलए आरमूर ने इन मसाइल की यकसुई का वाज़ेह तयक़ुन दिया। इस मौके पर इस वफद में वाइस चेयरमैन आरमूर बल्दिया शेख मुन्नू, नुमाइंदा कौंसलर शेख ज़हीर अली और दीगर मौजूद थे। इस प्रोग्राम में दीगर सियासी जमातों की अलाहिदगी इख्तियार करते हुए कई कायदीन ने टीआरएस में शमूलियत इख्तियार कर ली। हमारे हरदिल अजीज एमएलए साहब ने माइनॉरिटीज के मसाइल के ऊपर बातचीत की। ऐसे आदमी को जो हर वक्त हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है भाई भाई बोल के चलने वाले शख्सियत का नाम ही जीवन रेड्डी साहब है। इसीलिए फिर एक बार हम केसीआर साहब को, केटीआर साहब को, खास तौर पे निजामाबाद जिले के पूरे मुसलमानों का साथ आपके साथ है साहब, फिर एक बार शुक्रिया अदा कर रहे हैं। जय जीवन रेड्डी। इख्तिताम से कबल हेडलाइन। पर्दा हमारे निस्वानी विकार और तहफ़्फ़ुज़ की अलामत, इसके खिलाफ कोई भी साजिश नाकाबिले बर्दाश्त। हिजाब के खिलाफ साजिश, मुस्लिम दोशीज़ाओं को तालीम से महरूम करने की कोशिश, तालिबात का बयान। भीमगल बल्दिया के चेयरपर्सन के ओहदे के लिए 19 फरवरी को इंतखाब। 14 फरवरी पर्चा नामजदगी के अदखाल की आखिरी तारीख। जिला कलेक्टर ने भीमगल दौरे के मौके पर बल्दी ओहदेदारों को जरूरी हिदायत दी। बोधन में मशकूक अंदाज में घूमने वाले 2 नौजवानों की गिरफ्तारी। मालूम हुआ है कि ये 2 नौजवान सूडान से ताल्लुक रखते थे। बोधन पुलिस ने इनको विजयवाड़ा के खाजिन रजिस्ट्रार के हवाले कर दिया। पुलिस ने 2 अलग मामलात की यकसुई कर ली। एक में सेलफोन सारिक को गिरफ्तार करके 49 सेलफोन जब्त किए, जबकि दूसरे मामले में मोटर बाइक्स के सारिक की गिरफ्तारी अमल में आई। सीपी ने तफसीलात से आगाह किया। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दे इजाजत। अल्लाह हाफिज।